So, hi friends, my name is Dr. Ravi, and I'm the founder of Wise Dentist. And let us know about window shoppers. आज हम window shoppers के बारे में बात करने जा रहे हैं. And let us understand, are these real buy, passerby, or great prospect? All right. So let me take you through this beautiful presentation that will open your eyes and that will change your outlook towards these window shoppers. So let us know what does the definition says. As per the definition, window shoppers are people looking at things in shop windows without intending to buy. Now, dentistry में low intentions हम बोल सकते हैं. We cannot say these patients are not having intention to buy. In dentistry, we can say these guys have low intentions because see what happens in dentistry. Patients को दांत दुखता है, वो घर के सारे नुस्खे आजमा लेते हैं, वो लौंग, इलायची, अदरक, मसाला, एवरीथिंग, एंड देन जब कुछ काम नहीं करता, देन पेन किलर्स, एंड उसके बाद भी वर्क नहीं करता, देन दे कम टू अ डेंटिस्ट. So in dentistry, we cannot say these are people with low intentions, no intentions. In fact, these are people with low intentions. Maybe उनको requirement है, but उनकी priority नहीं है. उनको dental treatment करना है, लेकिन शायद उनके पास पैसे नहीं है, शायद आप right dentist नहीं है, or whatever, So we are clear about the definition. Let us know how do we or our staff identify them. So yes, we can identify these people, these window shoppers, by the dialogues they use or the signals they give. Identity वो पूछते हैं रूट कनाल का कितना पैसा होगा, आप समझ जाते हैं कि ये विंडो शॉपर है. क्लीनअप का कितना लेते हैं, डॉक्टर है क्या, कुछ लोग तो खाली इतना ही पूछे डॉक्टर है क्या, खाली पूछने का है क्या, वो नहीं बताएंगे. आई मीन ये विंडो शॉपर्स के कॉमन डायलॉग्स हैं. एंड आपके इधर दांत निकालते हैं क्या, कितना पैसा होएगा, पूरा हिल रहा है दांत, सिर्फ थोड़ा सा धक्का देना धक्का देना है. एंड आई एम श्योर वी ऑल कैन राइट अ बुक. अगर कोई कहे कि डायलॉग्स आप और बताओ, तो हम सब पूरी की पूरी एक बुक लिख सकते हैं ऑन दिस डायलॉग्स. सो आई एम प्रीटी श्योर दैट वी ऑल कैन जज patients by their dialogue whether they are window shopper or not. Well, let us understand and let us learn the art of converting a passerby or a window shopper. And guys, the good thing is it is an art. And the good news is we can learn this art. Earlier क्या होता था, हम डेंटिस्ट अपने आप से एक्सपीरियंस करते थे और उसको मास्टर करते थे. बट with this presentation and the advancement of social media, yes, you can learn this art, you can practice this art, you can experience, and then you can master this. All right. सो आपके लिए डायरेक्टली एक्सपीरियंस करना और फेल होना और फिर मास्टर करना नहीं है. आप डायरेक्टली सीख सकते हैं, आप डायरेक्टली उसको कट शॉर्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड देन आप एक्सपीरियंस करके यू कैन मास्टर. So before we get into all the solutions, all the problems, let us understand what is a consultation and what is the difference between consultation and conversation. So mostly what happens, I believe, पेशेंट हमारे क्लिनिक में आते हैं और उन्हें कुछ नॉलेज चाहिए होता है, लेकिन हम हर वो इस तरह के पेशेंट को इग्नोर करते हैं. हमें हमें लगता है कि दे आर जस्ट अ विंडो शॉपर, दे आर नॉट गोइंग टू पे अस फॉर आवर टाइम, एंड हम उनसे मिलना पसंद नहीं करते. सो गाइज, आई वुड एडवाइज यू टू अंडरस्टैंड कि कंसल्टेशन और कन्वर्सेशन में ये फर्क है कि consultation, you get the patient into the dental chair, you ask their problems, you check them, and you advise your treatment plan, and then give them a quotation. But conversation, many a times patient को कुछ हल्की फुल्की information चाहिए होती है. डॉक्टर साहब कैसे हैं, कितने सिटिंग लगेंगे, एंड रूट कनाल होता है कि नहीं होता है, what are the type of crowns, and डॉक्टर एक्सपीरियंस कितने हैं. दिस इज जस्ट अ कन्वर्सेशन. सो गाइस, लेट मी टेल यू, आप पहले समझिए, आपकी टीम समझे, and talk to them, get into the conversation, don't be blunt. सीधा blunt हो जाइए और आप सीधा उनको कहिए कि नहीं, आपको जो भी जानना है, जो भी पूछना है, उसके लिए तो आपको कंसल्टेशन ही करना पड़ेगा, और उसके पहले कंसल्टेशन का इतना चार्जेस होगा, और उसके पहले हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सो डोंट बी ब्लंट. You'll have to set your own boundaries. आप पेशेंट को
कन्वर्सेशन के लिए जब ले रहे हैं, सो आपको अपनी बाउंड्रीज रखनी होगी। आप कितना टाइम, एक बेंचमार्क सेट कीजिए कि भाई मैं पेशेंट से कन्वर्सेशन करूंगा एंड आई विल सेट अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, सो आप टाइम सेट कर लीजिए। आप अपनी टोन को बहुत ध्यान दीजिए। यू शुड ऑलवेज बीन इन अ गुड टोन एंड योर नेचर शुड बी towards guiding them, educating them and counseling them, during this conversation. And आप उनको welcome कीजिए, you guide them, you help them, you inform them and you let them go with a smile. That should be your attitude. And if you use this art, जो हम आर्ट के बारे में आज बात करने जा रहे हैं, if you use this art, your every visitor, your every window shopper will become a converted patient for sure. And I think you should and you must learn this art. You should try applying this and master it gradually. Also, it's a teamwork. अगर आप ये conversations भी नहीं करना चाहते हैं, so you can guide your staff. आपकी स्टाफ आपके लिए काम कर सकती है। और else if you have a junior associate dentist, आप उनको गाइड कीजिए and let them speak to patient. आप पेशेंट से बात कीजिए, उनके लिए भी ये टाइम बाउंड्री रखिए और उनको गाइड कीजिए ये टोन और काउंसलिंग के बारे में, And I think conversation is a good way to market yourself and your dental practice. जब आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, so आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपको मौका मिल रहा है, आपकी टीम को, आपके स्टाफ को मौका मिल रहा है, you are getting a chance to create a good rapport with that patient. You can take the contact number of that patient, saying that you can share a video, a YouTube video, you can share an article, you can share your patient's review. So आपको इनडायरेक्टली मौका मिल रहा है ये रॉ लीड्स को कन्वर्ट करने में, सो कन्वर्सेशन पे आप टाइम स्पेंड कीजिए एंड कन्वर्सेशन में बहुत ही प्यार से उनको आप गाइड कीजिए। एंड अगर वो उससे ज्यादा टाइम लेना चाहें या आपसे प्राइस के बारे में आना चाहें, तो जस्ट लेट देम नो वेरी सॉफ्टली कि आई नो कि यू विल अप्रिशिएट माई टाइम एंड यू विल रिस्पेक्ट माई टाइम, एंड इससे कुछ भी ज्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो व्हाई डोंट यू कम फॉर अ कंसल्टेशन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद व्हाट एवर ऑल यू वुड वांट टू नो। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि पेशेंट्स को ये बुरा नहीं लगेगा। सो आई एम श्योर कि कंसल्टेशन एंड कन्वर्सेशन के बारे में आपको डिफरेंस पता चल गया है एंड यू विल स्टार्ट spending a good time in doing a good conversation. So उनकी फीलिंग भी फीलिंग होती है, हमारी फीलिंग फीलिंग नहीं होती, उनकी फीलिंग, तो उनकी फीलिंग भी फीलिंग होती है। To tell you, if you have used the art in right way, then फिर क्या हो, those patients, those visitors may buy treatment from you in future. They may buy right away. वो same day पे ready हो जाएंगे consultation के लिए और very next day they'll go to their home, they'll discuss it with their family and they'll come very next day. Or they may consider suggesting your name to their other friends, colleagues, well-wishers. Many times what happens, आपने अच्छा conversation किया, आपने अच्छे से guide किया, वो आपके treatment को afford नहीं कर सकते, what they will do is they will share it with the people looking in need of a good dental treatment. वो ये कहेंगे कि हम वहाँ डॉक्टर रवि के यहाँ पे गए थे एंड द टीम एंड द डॉक्टर इज सो नाइस, हमें सारी चीजें बताई एंड शायद हम ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव और वैल्यू फॉर मनी है, बट आप कर सकते हो तो प्लीज जरूर जाइएगा। सो दे मे कंसिडर सजेस्टिंग टू अदर्स एंड इनडायरेक्टली दे आर ब्रांडिंग यू, सो वो आपके फ्री में ब्रांड एम्बेसडर्स हो गए। Alright, and once they buy an iPhone, they will consider you. I'll share an incident. Some 5 years ago, a boy came for a consultation with her mother. अपनी mother को checkup कराना था and उन लोगों ने मुझसे consult किया and I guided them throughout. मैंने उनको treatment plan दिया, options दिया. Unfortunately, वो मेरे treatment को afford नहीं कर सकते थे, but they were pretty happy. And उन्होंने मुझसे ये चीज कही कि doc, my consultation was very good, you guided us very nicely, but हम afford नहीं कर सकेंगे and we'll come back to you in future. And 5 years के बाद जब मैंने सेम एंड मैं जज कर सकता था कि सही में वो फाइनेंशियली शायद अफोर्ड नहीं कर सकते थे मेरी ट्रीटमेंट,
And down the line, after 5 years or 6 years, when they came, तो मैंने देखा कि सेम बच्चा अपनी मदर को लेके आ रहा है अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए, और वो ट्रीटमेंट उस बच्चे ने बच्चे जो ग्रो अप हो गया था, वो शायद अब जॉब कर रहा था, एंड ही वाज इन अ गुड कंडीशन, उसने आईफोन तक खरीद लिया था, यू नो। एंड शायद वो फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो गए थे, और उनको मेरा कंसल्टेशन इतना अच्छा लगा था कि 5 years के बाद भी उन्होंने मुझे याद रखा, एंड दे कंसिडर्ड मी. सो मेनी टाइम्स इट विल टेक टाइम, बट फॉर श्योर वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा. सो यू नो सो एटलीस्ट अगर आपने राइट कन्वर्सेशन किया है और राइट तरीके से इस आर्ट को यूज किया है, तो एटलीस्ट दे विल नॉट बैड माउथ यू आपके बारे में. चलो, आपसे ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, आपको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, आपके ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं हो रहे हैं, तो एटलीस्ट बैड माउथ तो नहीं करेंगे. एंड ऑन अ लाइटर नोट, आपको अगर कुछ पेशेंट्स रिश्ते लेके आने लगे हैं, तो आप समझ लो कि आपकी डेंटिस्ट्री बहुत अच्छी है, एंड आप इस आर्ट को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हो, एंड यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग. सो ऐसा होने लगता है कि व्हेन अ डेंटिस्ट एंड हिज टीम, व्हेन दे परफॉर्म एंड व्हेन दे हैव अ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सो पेशेंट्स जो है वो उनके जान पहचान में कोई ना कोई जरूर रहते हैं, और दे स्टार्ट कंसिडरिंग यू एज अ दैट गुड गाय whom they can welcome in their family. So ये चीज भी होती है. It's a very strong point that you are going very well in life. And अगर ये आर्ट को, if you are using this art very poorly, obviously कोई बाई नहीं होगी. ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट जाके बाहर बैड माउथ करे, and you have lost that patient right from that moment forever. आपने हमेशा उस पेशेंट को खो दिया है. अब उनकी फीलिंग तो हमने बात कर ली. हाउ डू वी गेट वाई डू वी गेट हर्ट? हमारी फीलिंग्स नहीं होती. हम हर्ट क्यों होते हैं? हम विंडो शॉपर्स जो आते हैं, जिनको सिर्फ इंक्वायरी करनी होती है, हम उनसे दुखी क्यों होते हैं? वी सी दिस इंसिडेंसेस. जो विंडो शॉपिंग होती है या जो विंडो शॉपर्स होते हैं, हम उनको कैसे देखते हैं? वी सी देम एज एन अपॉर्चुनिटी, और जब वो चले जाते हैं पूछ के, तो वी सी देम एज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी एंड अ लॉस्ट सेल. या 10,000 का नुकसान हो गया, यार फुल माउथ रिहैब में मैंने खो दिया. सो हम उसको अपने आप से रिलेट करने लगते हैं. हमें ये सारी चीजें शायद नहीं करनी चाहिए. एनीवेज, पहले हम देख लेते हैं कि ये इंसिडेंसेस से हम हर्ट क्यों होते हैं. बिकॉज वी सी, सो वी ऑलवेज हैव अ फोबिया. हमें फियर है कि वी माइट लूज देम. चार्जेस पूछने आया तो हमें कम से कम बताने हैं, और एल्स विल लूज देम. एंड टू टेल यू, कम से कम बताने के बाद भी वो पेशेंट टर्न बैक नहीं होते. आपको क्या लगता है, आप कम चार्ज बोलेंगे तो वो एक्सेप्ट होंगे? लेकिन हर बार वो पेशेंट ये सोच के नहीं आते आपके पास कि सिर्फ चार्जेस, शायद वो इंक्वायर करने आए हैं, बट आपने ये सोचा कि शायद ये चार्जेस कम चार्जेस है, बाजू वाले बगल वाले डेंटिस्ट से कंपेयर करने आए हैं. सो आपने उस फियर से आपने चार्जेस कम बोल दिए, बट स्टिल वो नहीं आए. आप वो याद कीजिए, 5 years अगो वाला मेरा पेशेंट, वो आईफोन वाला पेशेंट, मैंने चार्जेस कम नहीं किए, फिर भी वो आए, बट उन्होंने टाइम लिया. सो हमें फियर होता है. हमारा एक फिक्स बेसिक कॉस्ट होता है मंथली, 30,000 40,000 रुपए हमें भाई रेंट देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, इतना तो देना ही है, हमें ईएमआई देना है. तो जब ये अपॉर्चुनिटीज, जब ये विंडो शॉपर्स को हम ग्रैब नहीं कर पाते, तो हमें बैड एक्सपीरियंस हो जाता है, और इसके लिए हम हर्ट हो जाते हैं. एंड हमें हमें हमारे सीनियर्स के थ्रू या हमारे कोलीग्स के थ्रू वी हैव अ बिलीफ दैट दिस विंडो शॉपर्स आर रियली बैड गाइज. ये सिर्फ पूछते हैं कितना भी कम रहे, भाजी मार्केट की तरह बना के रखा है, ये सब पूछते हैं और आते तो है नहीं. सो एक रॉन्ग बिलीफ है हमारे बारे में, और इस बिलीफ की वजह से भी हम तकलीफ में आते हैं. And you know what, we get exploited in both the scenarios. उन्होंने चार्जेस पूछा, हमने कम चार्ज कोट किया, और फिर या तो हम ट्रीटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे. सो आपको लगता है कि you've quoted a price that is comparatively low as per what you deserve, and फिर भी पेशेंट ने रिजेक्ट कर दिया, and then you have that bad feeling. And second scenario कि आपने कम कोट किया ताकि आप पेशेंट को लूज नहीं करो, एंड पेशेंट एक्सेप्टेड, एंड आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिल रहा है, एंड शायद आप कहीं कॉर्नर्स कट कर रहे हो, आप लोकल लैब से क्राउन कर रहे हो, एंड आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है. सो ये भी एक रीजन है, यू डू गेट हर्ट इन सच इंसिडेंसेस. नाउ लेट अस नो अबाउट द सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन ये है कि सेट द बाउंड्रीज एंड बी मेंटली स्ट्रांग. इस तरह के पेशेंट्स आपको मेंटली परेशान नहीं कर सकते. आप ये जान लीजिए कि आपको अपना एफर्ट देना है, आपको अपना लेवल बेस देना है, एंड आपको सिर्फ ये जान लेना है कि मेरा लेवल ये है कि मैं इस पेशेंट को इतना टाइम दूंगा, ये सारे एक्सप्लेनेशंस करूंगा, और इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर वो पेशेंट एक्सेप्ट करे या नहीं करे,
मेरा ये बेंचमार्क है, एंड पेशेंट आए या नहीं है, डज नॉट मेक सेंस। शायद अगर मैं आप ये आर्ट को ब्यूटीफुली यूज कर लोगे, द पेशेंट माइट कम टू यू इन फ्यूचर, और जैसे हमने देखा कि आपके बारे में वर्ड ऑफ माउथ अच्छा करे, या फिर जब उनके पास पैसे हो जाए तब वो आएंगे। सेकेंड थिंग ये होगा, या सेकेंड थिंग ये होगा, कीप अ बैकअप और कंटिजेंसी फंड। आपके मंथली इनकम्स जो फिक्स इनकम्स हैं, वो आप ये पेशेंट्स, ये विंडो शॉपर्स नहीं आ रहे हैं, आप उन पे डिपेंड मत होइए। आपके पास एक कंटिजेंसी फंड होनी चाहिए, पेशेंट आए या नहीं आए, आपका रेंट यहाँ से होना चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे विंडो शॉपर्स ही आएंगे एंड थ्रू आउट द होल ईयर, थ्रू आउट द होल 12 months यू वोंट बी एबल टू पे योर रेंट और दीज फिक्स्ड मंथली इनकम्स आप नहीं पे कर सकेंगे। ऐसा नहीं होगा, किसी मंथ में आप सरप्लस अर्न करेंगे एंड यू कैन डाइवर्ट दैट मनी इनटू कंटिजेंसी फंड एंड यू कैन यूज दिस, so that's how you can use. And it is but obvious, not everybody like Katrina, some may like Rakhi Sawant as well, irrespective of however good or bad, however bad नहीं बोलेंगे, irrespective of however आपने कितना भी एफर्ट किया, बहुत अच्छे से काउंसिल किया, गाइड किया, कन्वर्सेशन किया, ग्रीड किया, हेल्प किया, इन्वेस्ट किया, टाइम फॉलो अप किया, बट उसके बाद भी पेशेंट नहीं आए, तो ये हो सकता है कि पेशेंट ने आपको पसंद नहीं किया, एंड दैट इज ऑब्वियस कि हर किसी को शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन पसंद नहीं है, you know so you cannot satisfy anybody and everybody, so accept that fact and बहुत ही इमोशनली अटैच मत हुई इन विंडो शॉपर से, बस अपना काम करो और दरिया में डालो, तो कहते हैं ना कि डू अ गुड डीड एंड ड्रॉप कर दो उसको, ऑलराइट। एंड आल्सो फोर्थ पॉइंट, बिलीव इन हैविंग पेशेंस, build your practice the way you want and not how the market demands। मार्केट में अगर 100 पेशेंट आप ट्रीट कर रहे हो एंड आप भले कितना ही वेल टू डू पेशेंट हो, अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या वैल्यू फॉर मनी था, आई एम प्रेटी श्योर हर वो बंदा, ऑलमोस्ट हर वो बंदा ये जरूर कहेंगे यार थोड़ा कम लेते या थोड़ा कम कर देते तो अच्छा था। सो आपको वो पेशेंस नहीं चाहिए, यू सेट योर ओन वर्थ, आप अपने चार्जेस को डिसाइड कीजिए, कॉस्टिंग कीजिए, अपने प्रॉफिट्स को ऐड कीजिए और पेशेंट्स को एक्सप्लेन कीजिए, वैल्यू क्रिएट कीजिए। एंड अगर पेशेंट्स उतने में नहीं आते हैं तो आप उनसे इमोशनली अटैच मत होइए एंड लीव देम, लेट देम गो अवे, एंड देन मे बी वो एनकाउंटर करेंगे और आज नहीं तो कल आपके पास जरूर आएंगे, ऑलराइट। सो convert your visitors into confirmed patients. Window shoppers are interested prospects. Yes, we all know it's true that window shoppers aren't actively engaged in the buying process, but they are all invariably interested in whatever you sell in some way, shape or form. अगर अगर उनको आपके ऑफरिंग में या आपके ट्रीटमेंट में, आपकी सर्विसेज में इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो वो अब तक आते ही नहीं, और इस दुनिया में विंडो शॉपर्स होते ही नहीं, सो विंडो शॉपर्स है ना, इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड होते हैं, और आपको उनको कैसे कंफर्म पेशेंट्स में कन्वर्ट करना है, यही सारी चीजें वी आर गोइंग टू लर्न, get them to take small actions. Now, to tell you, a passive patient remains passive unless somebody pokes him to take action. ये एक्शन स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है, और ये एक्शन क्या होगा और ये कैसे होगा। आपके पास एक विजिटर आते हैं, विंडो शॉपर आते हैं, आपके पास इंक्वायर करते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, आप या आपके स्टाफ उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, आप उनसे पूछते हैं, आप थोड़ी इंक्वायरी करते हैं, यू आस्क देम how does that problem affects them personally, professionally or socially, and you आप उनको गाइड कीजिए, आप उनको कैसे गाइड कर सकते हैं कि ओके आपका दांत दर्द कर रहा है एंड देन आप स्लीपलेस नाइट स्पेंड कर रहे हैं एंड जिसकी वजह से मॉर्निंग में आपका वर्किंग आवर, आपका ऑफिस टाइम अफेक्ट हो रहा है, यू वर्क प्रोडक्टिविटी इज गेटिंग अफेक्टेड, यू आर हैविंग अ रफ रिलेशनशिप विथ योर colleagues. So why don't you get ahead and get this painless root canal done, which is done in single sitting, and we can accommodate you after your office hours. You can say 8 p.m. or so and get this thing sorted. And don't you think कि इसके बाद आप आराम से शांति से सो सकेंगे and ऑफिस में आप अपने वर्क पे अच्छे से ध्यान दे सकेंगे, and you will be having a productive time at office. And mind you, आपके जो colleagues होंगे उनसे आपके relationship अच्छे रहेंगे। सो ये आपने यहाँ पे पोक किया पेशेंट को, एंड अगर आप अच्छे से काउंसिल कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, सो पेशेंट को आप पूछ सकते हो कि इफ यू डोंट माइंड कैन वी हैव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एंड अगर कभी कभी पेशेंट्स होते हैं कि हमको कम प्राइस में करना है, सो व्हाई डोंट यू टेक देयर कॉन्टैक्ट नंबर एंड लेट देम नो दैट हेलो मिस्टर XYZ, वी विल लेट यू नो व्हेन वी आर रेडी फॉर योर ऑफर।
यू नो। एंड मैं मे बी प्रेजेंटेशन के एंड में या फिर कभी अलग से बताऊंगा कि हाउ कैन यू हेल्प देम, you know. So आपके पास उनका information आ गया है. You can share what all informations do you want. If you have an article, if you have an informative YouTube video, you can add them to your WhatsApp group, you can add them in your broadcast list, you can share your reviews, and that's how, you know, you can help them, you can poke them into taking small actions. And indirectly, by doing these things, by doing these things, you are setting the stage. By doing these things, you are inviting them to take action and become your patient. आप ये करके उनको indirectly invite कर रहे हो, you know. And how can you make them, and ये सारी चीजें करके you are making them aware about your Google page, about your website. आप newsletter के लिए subscribe करा सकते हैं. You can give your brochures, you know. एंड ये सारी चीजें आप कर सकते हैं. तो इनडायरेक्टली आप उनके नीड्स को और वांट्स को समझ रहे हैं और उसी को आप कन्वर्ट करके उनको पोक कर रहे हैं. ऑलराइट, सो लेट अस गेट टू द थर्ड पॉइंट. ये जो विजिटर्स होते हैं, ये कंफर्म पेशेंट्स में आप इनको थर्ड पॉइंट के थ्रू भी कन्वर्ट कर सकते हैं. अंडरस्टैंड, ग्रीट देम प्रॉपरली. एज अ बिजनेस, यू एंड योर टीम, it is your job to make sure that you set the proper tone and mood to garner good feelings with prospects, and yes, even with window shoppers. There is nothing worse, my friend, there's nothing worse than walking into a clinic and not even being greeted because the doctor or the staff knows that you're just looking. Yes, we agree, but you might have bought, had someone treated you like a potential customer and not like a time waster, you know. So guys, make a good impression. Mere upcoming sentence ko just hear me very wisely, hear me very attentively, that you can make a good impression with your words that generate positive feeling about your dental clinic. And trust me, my dentist friend, they will remember that, and they will remember you when they are ready to buy. It could be after 1 year, it could be after 5 years, as I said, or they will remember you if they are experiencing some awful or bad experience at some other dental clinic. So you ensure that you or your team welcomes them with warmth and greet them properly. And with this, I'll come to my fourth point, that if you cannot sell them, advise them, you know. ये चीज हमें याद रखनी है कि as I've mentioned earlier, that window shoppers are often collecting information before they make a decision. शायद उनको ट्रीटमेंट करना है, लेकिन कहाँ पे करना है और वो ट्रीटमेंट कैसा होता है उनको नहीं पता है. They probably won't buy from you today, but you can help stack the odds in your favor for the future purchase. So help people who come to you looking for information, know what their needs are. And yes, even window shoppers जो होते हैं उनकी भी needs होती है. वो जो मैंने कहा ना कि पेशेंट को समझिए कि उनको तकलीफ हो रही है, how does that problem affects him or her personally, socially, and professionally. And once you know their needs, you can direct them to what they're looking at and do this as quickly as possible. बहुत ज्यादा टाइम मत लीजिए कि हाँ हम आपको परसों बताएंगे, नर्सों बताएंगे. No, do it right away. You know what? Answer potential questions before they appear in your prospect's mind. आप उनको बताइए कि भाई रूट कनाल दांत के 3 लेयर होते हैं और ये रिस्पेक्टिव लेयर्स तक ये डीके पहुंच जाएगा तो ये ट्रीटमेंट होता है. एंड रूट कनाल करने के बाद क्राउन क्यों करना चाहिए? बिकॉज योर टूथ कैन गेट फ्रैक्चर बिकॉज इट बिकम्स ब्रिटल. तो वो क्वेश्चन करें, उसके पहले आप बता दीजिए, would be excellent. And guys, present them choices and point out the differences along the way. जब आप उनको एडवाइस कर ही रहे हो ना, तो इंश्योर करो कि आप उनको बहुत अच्छे से एडवाइस कर रहे हो. मेटल क्राउन्स क्या होते हैं, मेटल सेरामिक क्राउन्स क्या होते हैं, बेसिक लैब्स क्या होते हैं, अच्छे लैब्स क्या होते हैं, आप उनको गाइड कीजिए. And give them information, and by that I mean really give them information, because what happens most of the times, we assume that the patients, they know a lot more about the treatment and the services than they actually do. So हमें लगता है कि पेशेंट को पता ही होगा, या ये विंडो शॉपर्स है, वी डोंट वांट टू इन्वेस्ट आवर टाइम, तो इसीलिए मैंने कहा था कि सेट टाइम, एक टाइम लिमिट रखिए. हर पेशेंट को एटलीस्ट 10 मिनट तो दीजिए, अनटिल अनलेस वो सामने से नहीं चाहता. So time दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए. और अगर आपको लगता है कि you cannot invest your time, you can
you can cultivate, you can generate, you can teach your staff to do this. So if you cannot sell them, advise them is my fourth point. And I'll come to my fifth point, that let them go but help them remember you. रिमेंबर मैंने कहा था विंडो शॉपर्स जो होते हैं उनको अच्छे से ट्रीट करो, बिकॉज फ्यूचर में वो आपके कस्टमर, आपके पेशेंट्स बन सकते हैं। हो सकता है कि भले उनको 1 साल, 2 साल, 5 साल क्यों ना लगे। या सो हियर मी आउट वेरी अटेंटिवली, द की इज मेकिंग श्योर दैट दे लीव देयर विंडो शॉपिंग मोमेंट विथ पॉजिटिव फीलिंग। मैं फिर से रिपीट करूंगा, hear me out very cautiously. The key is making sure that they leave their window shopping moment with positive feeling. Yeah. So welcome them, guide them, help them, inform them, and let them go with a smile. आप आप ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कीजिए कि वो फिदा हो जाए, वो फ्लैट हो जाए। एंड ये सारी चीजें करने के बाद यू स्टे इन टच। आपने उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया है, यू स्टे इन टच इफ पॉसिबल। Do not dismiss them completely. To tell you, window shoppers will for sure think favorably of doctors or clinics that care about their best interest and who wanted them as happy people, if not as a happy customers. So with these 5 points, I have guided you how you can convert your visitors, passerby, or window shoppers into confirmed patients. विंडो शॉपर्स को आप इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट की तरफ देखिए, गेट देम टू टेक स्मॉल एक्शन, उनके नीड्स जानिए, उनको वांट्स जानिए, एंड उनको पोक कीजिए इमोशनली, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, उनको आप अपने आर्टिकल्स, अपने रिव्यूज भेजिए, उनको अच्छे से ग्रीट कीजिए। एक बार वो आपके क्लिनिक में आ रहे हैं तो आप और आपका स्टाफ फुल वार्मथ के साथ, पूरे अटेंशन के साथ उनको ग्रीट कीजिए। और अपने माइंड में ये मत रखिए कि हमको बस ये कन्वर्ट करना ही करना है। वो बोलते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल। इफ यू कैन नॉट सेल देम, एडवाइस देम, उनको गाइड कीजिए, उनको टीच कीजिए, एंड ग्रेजुअली वो ये सारी इंसिडेंसेस वो याद रखेंगे, और जब वो जाएंगे तो वो सिर्फ आपको याद करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, trust me my dentist friends, if you apply these 5 points, you're every, trust me, you're almost every window shopper जो मैंने बोला, या तो खरीदेंगे या फ्यूचर में खरीदेंगे। चलो नहीं परचेस किया आपका ट्रीटमेंट, तो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाएंगे। और अगर वो भी वो नहीं कर रहे हैं, सो एटलीस्ट यार कम से कम आपको बैड माउथ तो नहीं करेंगे। सो आपका बुरा क्या है, और आप इसमें देख क्या रहे हो? यू आर जस्ट गिविंग योर टाइम, और अपने वो टाइम इन्वेस्ट करने का डिसाइड कर लिया है, जस्ट 10 minutes. So let us take this conversation ahead. What is my bottom line, my friends? Bottom line मेरा क्या कहता है, हमें वो समझना बहुत जरूरी है। My bottom line says same applies to all, irrespective of X, Y, Z. You know, bottom line ये रखो कि anybody and everybody, irrespective of whether how good or bad he or she is, manners है या नहीं है, रूट है या अच्छे थे, literate है या illiterate है, treat them very nicely, because they will remember about a person, about a dentist, about a team who have made them smile, who have greeted them, who have welcomed them with warmth, who have guided them, who has informed them. And they will remember how special you've made them feel. क्या? आप ये याद रखिए, make them feel special. And आपके क्लिनिक पे एक ही रूल बनना चाहिए, whoever, however, whatever it may be, टाइम तो देना ही है बॉस। और टाइम जब देना ही है ना, और जब 10 मिनट आपने डिसाइड करके ही रखे ना, तो यू एंश्योर कि आपके विंडो शॉपर्स के जो डेंटल क्लिनिक के एक्सपीरियंसेस हैं या जो होंगे, ये 10 मिनट उनकी जिंदगी के सबसे हसीन 10 मिनट होने चाहिए। आप ऐसा उनको वाव फील कराइए। तो जब आप अपना टाइम दे रहे हो ना, तो अपना बेस्ट टाइम दीजिए। ट्रीट देम लाइक योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स मदर। यू नो, आप अगर मैरिड हैं तो अपने मदर इन अपने मदर इन लॉ को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यू नो, होता क्या है, आई लव माय मदर इन लॉ, बट आई डोंट नो अबाउट अदर्स। यू डोंट लाइक देम, मदर इन लॉज या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की मदर, यू डोंट लाइक देम, बट यू विल हैव टू बिहेव सो वेल दैट वो हाँ कर दे। एंड एक बार वो हाँ कर देगी ना, तो आपको आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल जाएंगे, एंड आपकी लाइफ बन जाएगी। यू नो, और अगर मदर इन लॉ है और वो खुश रहेगी, तो आपकी लाइफ खुशहाल रहेगी। आई एम श्योर आप
If you're a female dentist or male dentist, you can relate to this. So on a lighter note, I've taken this example because you can relate with this. So you don't have to like them, but you will have to behave so well that वो हाँ कर दे, you know. And अगर आपको लगता है कि बॉस मैं इतना टाइम स्पेंड नहीं करता, my time versus money ratio is pretty high, I cannot spend my time with all this nonsense or whatever you say, you know, with these guys, why don't you delegate? Why don't you delegate this thing? Why don't you teach this thing? Why don't you share my video with your associate dentist, with your associate staff? Yeah, share कीजिए और वो सीखेंगे और वो ये चीज ब्यूटीफुली करेंगे. Yeah, so in the end I'll share two different scenario. Consider एक पेशेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है और थोड़ी सी इंक्वायरी चाहिए, एंड योर स्टाफ विल बी लाइक आपको पता चल गया ये फ्री वाले हैं और ये यार ये ट्रीटमेंट तो कराएंगे नहीं, चार्जेस पूछेंगे, कम होगा तो कराएंगे नहीं तो नहीं, एंड यू हैव दैट नेगेटिव वाइब एंड योर स्टाफ और यू और योर एसोसिएट सेज फीस लगेगा, नहीं तो डॉक्टर क्या फोकट में नहीं बैठे हैं, यू नो, एंड डॉक्टर साहब तो अंदर वेब सीरीज देख रहे हैं, एक्चुअली में खाली ही बैठे हैं, बट आपका स्टाफ ब्लंट थे, आप खाली बैठे हैं, पेशेंट्स को क्या लगेगा, यू नो, डॉक्टर अंदर खाली बैठे थे लेकिन 2 मिनट अपना नहीं दे सकते थे. एंड रिवर्स में टेक दिस सेकंड सिनेरियो, अगर आपके यहाँ पे कोई पेशेंट आता है एंड आपके रिसेप्शनिस्ट शी ओपन्स द डोर एंड ग्रीट्स देम विद स्माइल, हाय गुड मॉर्निंग या नमस्ते, प्लीज कम इनसाइड, अंदर आइए, प्लीज हैव अ सीट, क्या पानी लेंगे, वुड यू लाइक टू हैव वाटर, एंड देन शी आस्क कि यस मैम प्लीज टेल मी अबाउट हाउ मे आई हेल्प यू, एंड उनके डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं, उनको दांत में दर्द है, अपर के टूथ में, लोअर में है, हाउ डज दैट अफेक्ट्स हर पर्सनली, प्रोफेशनली, सोशली, and then उनको पूछते हैं कि हाउ डिड यू केम टू अ कंक्लूजन कि दैट आपको रूट कनाल ही करना है, व्हाई नॉट अ रेस्टोरेशन, यू नो, एंड देन योर स्टाफ शोज अ वीडियो जो आपका खुद का बनाया हुआ यूट्यूब वीडियो है, जिसमें आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिसमें आप डिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, जिसमें आप डिस्क्राइब कर रहे हैं 3 डिफरेंट लेयर्स, एनामल, डेंटिन, पल्प, और कौन सा डीके कहाँ पे रहेगा तो ट्रीटमेंट क्या होगा, एंड देन यू टेक द कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन यू नो आप उनको गाइड कर रहे हैं, वो पेशेंट इतने खुश हो जाएंगे कि पूछो मत, वो ये कहेंगे कि यार महंगा है लेकिन डॉक्टर मस्त है, या स्टाफ ऐसी है इतनी अच्छी है या अच्छा है तो डॉक्टर कितना मस्त होगा, एंड ये सारी चीज होने के बाद आपका स्टाफ एट द एंड कहता है वुड यू लाइक टू सी डॉक्टर पांडे, he is very nice and he'll be very happy to meet you or to see you, and then you arrive with a smile or warmth and you say hi या नमस्ते, and आपका स्टाफ फिर ये कहते हैं कि सर she is Mrs. XYZ looking for some help and I have guided her completely and shared the whole informations and she wanted to see you, you know, and then आप उनसे कहते हैं कि आई होप मिसेस XYZ, आई होप मेरे स्टाफ ने आपको पूरी तरीके से गाइड कर दिया है, प्लीज लेट अस नो, विल बी मोर देन हैप्पी टू सी यू, विल बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू, सो दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर, फील फ्री, या वुड यू लाइक टू कम फॉर अ कंसल्टेशन नाउ, एंड आई एम प्रीटी श्योर बॉस अगर आप ऐसे करेंगे तो पेशेंट फ्लैट हो जाएगा, पेशेंट फ्लैट हो जाएगा, एंड आई थिंक दिस इज अमेजिंग गाइस. सो लास्ट चीज ये होगी कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, समटाइम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, यू नो, बट आपका बुरा क्या है, आपका बुरा कुछ नहीं है, एटलीस्ट एक ट्राइब बनती जा रही है हमारी, या ट्राइब बनती जाएगी कि दीज गाइज आर गुड पीपल, दीज डेंटिस्ट गाइज आर गुड पीपल, ये अच्छे से बात करते हैं, ये गाइड करते हैं, यू नो, एंड बहुत पोलाइटली अगर पेशेंट को आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं एंड बहुत पोलाइटली आप उनको रिफ्यूज कर सकते हैं चार्जेस बताने के बारे में, आपने उनको पूरा गाइड किया एंड फिर भी अगर वो इंसिस्ट करते हैं तो आप उनको ये कह सकते हैं माय डियर XYZ पेशेंट, आई विल रियली अप्रिशिएट, हमने आपको बहुत सारा नॉलेज दिया है, हमने सारी चीजें बता दी है, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू कम फॉर अ कंसल्टेशन, आई विल अप्रिशिएट इफ यू रिस्पेक्ट माई टाइम नाउ ऑनवर्ड्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा एंड आई एम रेडी टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर योर ट्रीटमेंट, बट आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप कंसल्टेशन के लिए आए, एंड अगर आप इतना कहेंगे तो आई डोंट थिंक कि यू नो पेशेंट जिद करेंगे. एंड टू शेयर अ स्टोरी विथ यू, विंडो शॉपर्स क्रिएट करो बॉस, विंडो शॉपर्स आप खुद क्रिएट करो. आई शेयर एन एग्जांपल, विंडो शॉपर्स मैंने क्रिएट किया और विंडो शॉपर्स को मैंने ये सारे जो आर्ट है वो यूज किया और मैंने कोई होप नहीं रखा और मैंने अपने आप को इमोशनली हर्ट नहीं होने दिया, एंड दैट पेशेंट केम टू मी आफ्टर 7 years or so, and trust me guys, these things does happen.
So happened to be एक Mrs. XYZ मेरे पास ट्रीटमेंट ले आया और उनकी डॉटर आई एंड शी जस्ट इंक्वायर्ड. उनको उस समय वही जो मैंने कहा था कि उनको जरूरत है बट उनकी प्रायोरिटी में नहीं है. सो मे बी शी वांटेड अ स्माइल डिजाइनिंग टू बी डन एंड शी आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग जो उन्होंने तब कंसल्टेशन नहीं किया. शी आस्क्ड फॉर सम इंफॉर्मेशन एंड मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दिया. मैंने उनको कुछ वीडियो शेयर किए, मैंने उनको इन डिटेल बताया, मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया एंड वो खुश हो गई. तो विंडो शॉपर वो थी नहीं, उनकी मदर को ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा था, बट मैंने उनको विंडो शॉपर बना दिया. आपके जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ जो अकम्पनी करते हैं जो लोग, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स, आप उनको विंडो शॉपर्स बनाए. आप काम कर रहे हो, व्हाई डोंट योर स्टाफ हु सिटिंग आइडल can use this कि hi Mr. XYZ, I cannot resist showing you what Dr. Ravi Pandey did and how impactful this treatment was for my dear patient. And then you showed a fractured tooth, anterior fractured tooth जो आपने treat किया हुआ है. And वो patient treatment के लिए नहीं आए हैं, but उन्हें तो wow, ये कैसे हुआ? And आप बताते हो कि ये fraction of seconds में हो सकता, fraction of minutes में हो सकता है. And आपने guide किया और वो चीज हो गई. एंड आपने विंडो शॉपर क्रिएट कर दिया. एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो पेशेंट है, इनके कांटेक्ट में जो भी लोग आएंगे या इस तरह के जो भी वो केसेस देखेंगे, वो आपका ही नाम रिफर करेंगे. सो दैट पेशेंट की daughter came to me after 7 years. She was working for Etihad Airlines. She was staying in Dubai. She came all the way to India. She stayed here. She got the treatment done by me. And she paid me a bomb. Trust me, guys, she paid me a bomb because she was working for an international airlines. वो चाहती तो वो एयरलाइंस के इंश्योरेंस में वो सारी चीजें कवर थी, वो कहीं भी ट्रीटमेंट करा सकती थी. बट दैट वन गुड मोमेंट, दैट 10 golden 10 minutes जो मैंने स्पेंड किए. सो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ learning and applying this art, and I'm pretty sure that life would be beautiful after this presentation. Thank you all, my dear friends. So I'm Dr. Ravi Pandey, and thank you for listening me very attentively. And I'm pretty sure that this presentation will make a good impact in your life. And I'm pretty happy, and I welcome you all to let me know what all doubts, questions do you have. So you can find me on Instagram, on Facebook and YouTube, and we are everywhere with the name of Wise Dentist. I really appreciate and thank you all for this beautiful presentation you've had with me. Thank you.